Okay, so let's start with microbiology. Pathology हो चुका है already. It has been done. The topics are already available on the channel. You can go and watch there. So now let us start with microbiology. And the first portion in the microbiology is nothing but the general microbiology, where we'll talk about media and the different type of tests like agar and lactose fermenter versus non-fermenters, everything gram positive, gram negative bacteria, everything we'll talk in this topic only. That is general microbiology, media and testing. So the first question, let us see here. Let me choose the pen here. Okay, so culture media that is helpful in differentiating lactose fermenters versus lactose non-fermenters, ठीक है, non-lactose fermenters. So let us see first which bacteria are generally lactose fermenters. So if we see lactose fermenting bacteria, there will be like fermentation of lactose. Generally, if we see the fermentation of lactose, there will be pink colony on the MacConkey agar. So this lactose fermenting versus non-lactose fermenting bacteria, if we see the fermentation of the lactose, there will be pink colony on the MacConkey agar. और उसके examples क्या क्या होंगे? Generally we'll have the bacteria like Citrobacter, E. coli, Enterobacter, Klebsiella and Serratia. They are generally lactose fermenting bacteria. ठीक है? This fermentation produces acid. जब fermentation होती है जनरली लैक्टोज की, after the fermentation of the lactose by Citrobacter, E. coli and these different bacteria, there will be generally production of acid, and the colony that appears pink is generally due to that acid only. So this fermentation produces acid and it causes pink colonies on generally the so here we'll see lactose non-fermenters. So if we have seen like lactose fermenters bacteria, now let's see lactose non-fermenters. So in the lactose non-fermenters, there will be Shigella and Salmonella, the two sisters, Shigella sister and Salmonella sister. So these two will be generally lactose non-fermenters. So generally we talked about generally MacConkey agar here in the lactose fermenting bacteria. So you all will be just guessing the answer now, that the culture media that is helpful in differentiating fermenters versus non-lactose fermenters are nothing but MacConkey agar. ठीक है? अब अगर जनरल माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट मैकॉन्की जगर, सम पॉइंट्स अबाउट मैकॉन्की जगर व्हिच विल बी आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन डिफरेंट एग्जाम्स, रादर लेट इट बी लाइक either it is like NEET PG or FMG or any other examination. So generally if we talk about MacConkey's agar, they will be made up of generally peptone, lactose, agar, neutral red and taurocolate. These will be present in generally MacConkey's agar. It is made up of these things. फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज अगर वहां पे होगा दैट विल गिव पिंक कलर, एंड इफ देर इज नो फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज दैट विल गिव जनरली पेल कलर. ठीक है, आगे देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास ये ऑप्शन में, ब्लड अगर. अब ये ब्लड अगर जनरली क्या है? ब्लड अगर इज नथिंग बट जनरल मीडिया फॉर मेनी बैक्टीरिया. दिस ब्लड अगर हैज बीन यूज्ड एज अ जनरल मीडिया फॉर मेनी बैक्टीरिया, जिसमें जनरली क्या होता है कि ऑटोक्लेव न्यूट्रिएंट अगर कूल्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस होता है. यहाँ पे जनरली ये अगर जो होता है ब्लड अगर, उसमें किसका ब्लड जनरली हम लेते हैं? तो दैट इज नथिंग बट 5 to 10% ऑफ द स्टेराइल सिप आरबीसी लेते हैं. ठीक है, सिप आरबीसी लेते हैं, मेड रिच बाय एडिंग ब्लड, है ना, उस आरबीसी में ब्लड डाल के उसको रिच करते हैं, एंड दिस इज अ डिफरेंशियल मीडिया. दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल मीडिया. यहाँ पे देखो, इफ यू टॉक अबाउट चॉकलेट अगर, सो चॉकलेट अगर इज नथिंग बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनरिच्ड मीडियम. ठीक है, दो मीडियम होते हैं, इनरिच्ड और इनरिचमेंट. विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स लेटर, बट जस्ट फॉर नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दैट चॉकलेट अगर इज इनरिच्ड मीडियम. ठीक है, इनरिच्ड मीडियम होता है. यहाँ पे दिस इज नथिंग बट ऑटोक्लेव न्यूट्रिएंट अगर कूल्ड टू 70 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे देखो ये कूल्ड टू कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस. दैट इज नथिंग बट ब्लड अगर. और अगर हम चॉकलेट अगर की बात करें तो दिस इज ऑटोक्लेव न्यूट्रिएंट अगर विच इज कूल्ड टू 70 डिग्री सेल्सियस. This is again comprising of the 5 to 10% sterile SIP RBC, more nutritious than MacConkey agar. This is slightly more nutritious than MacConkey agar. If we see about the release factor, there will be factor 5 and 10 released, and example in case of H influenza we take this. आगे देखो, पोटासियम टेलुराइट अगर हम बात करें जनरली, दिस इज नथिंग बट अ सेलेक्टिव मीडियम. ठीक है, ऊपर वाला क्या था? इनरिच्ड मीडियम था, नीचे वाला क्या है? ये सेलेक्टिव मीडियम है. सो इन सेलेक्टिव मीडियम इफ यू सी, दिस गिव्स ब्लैक कलर, इट इज जनरली इन ब्लैक कलर. दिस इज यूज फॉर जनरली कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया. ठीक है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए यूज किया जाता है. दिस इज इनरिच्ड मीडिया. जैसे अगर लोफलर की बात करें तो जनरली 8 आवर्स में, है ना, और सेलेक्टिव मीडिया अगर पीटीए की बात करें तो 48 आवर्स लगेंगे यहाँ पे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट ऑप्शंस ऑल्सो हेयर. आगे देखें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन. सो स्टेरिलाइजेशन नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे, वो यही जनरली स्टेरिलाइजेशन के टेक्निक्स पे जनरली क्या पूछा जाता है? क्वेश्चंस पूछा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन. प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में जनरली वेपोराइज्ड H2O2 यूज किया जाता है. ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज इन द वेपोराइज्ड फॉर्म. सो जनरली मैं आपको बताता हूँ, देखो
प्लाज्मा स्टरलाइजेशन क्या है जनरली? प्लाज्मा स्टरलाइजेशन समझने से पहले ये समझो कि व्हाट इज प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा ये ब्लड वाला प्लाज्मा की बात नहीं हो रही, स्टेट ऑफ मैटर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केमिस्ट्री, है ना, कि जनरली क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, है ना, गैसियस, और एक प्लाज्मा स्टेट, जैसे हम पढ़ते हैं जनरली लाइक, अगर बहुत एग्जैक्ट तो नहीं है बट सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो वी कैन टेक फायर एज एन एग्जांपल ऑफ जनरली प्लाज्मा, है ना, वैसे ले सकते हैं, एग्जैक्ट तो वो भी नहीं है ना। प्लाज्मा में अगर हम देखें फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर करके बोला जाता है इसको, सो दिस प्लाज्मा जनरली इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, it is gaseous state containing ion and electrons. This is the exact definition you will get, the gaseous state which contains ion and electrons, ठीक है, this is nothing but plasma. So अगर ये प्लाज्मा है तो इसमें स्टरलाइजेशन, विल यूज दिस प्लाज्मा फॉर स्टरलाइजेशन, here the process will be UV photons will be used, vacuum, then low temperature and H2O2 chemical will be present. So generally process में क्या होगा, UV photons used होगा, vacuum होगा, low temperature पे, and H2O2 chemical will be present. The advantage is that there is no toxicity and shorter time duration. छोटे से टाइम ड्यूरेशन में this will do its work. यूज में अगर हम देखें तो जनरली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आर्थ्रोस्कोप्स एंड यूरेट्रोस्कोप्स आर जनरली, ये क्वेश्चन जो मेन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा आपको, कि generally which are the instruments that is generally sterilized by plasma sterilization. So surgical instruments like arthroscopes and ureteroscopes will be generally sterilized via this technique. If we talk about the control used in this technique is nothing but Bacillus स्टीयरोथर्मोफिलस, ठीक है, स्टीयरोथर्मोफिलस। यहाँ पे देखो दो चार चीजें और दी हुई हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड जनरली कहाँ पे यूज होता है, दिस इज यूज्ड इन गैस स्टरलाइजेशन टेक्निक, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड इज यूज्ड इन गैस स्टरलाइजेशन टेक्निक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज स्पोरिसाइडल, ये स्पोर्स को भी किल करेगा और माइक्रोबिसाइडल यानी कि माइक्रोब्स को भी जनरली किल कर सकता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो दिस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, ठीक है, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, हाईली इरिटेंट, हाईली एक्सप्लोजिव, ठीक है, ये इसकी जनरली साइड इफेक्ट्स हैं। नेवर यूज 100% ईटीओ, इथाइलिन ऑक्साइड जनरली हम कभी भी 100% यूज नहीं करते। इफ वी टॉक अबाउट दिस, the next point is that 3 to 10% of ETO is enough mixed with inert gas to make less inflammable. अब देखो inert gas generally क्या कहते हैं, inert gases are those gases or those substances which does not react with anything in the world, they are like chill, इसीलिए उसको inert भी बोलते हैं, inactive भी बोलते हैं ना। हमने जो पढ़ा था लाइक inert gases में, हमने जो सबसे लास्ट में पढ़ा था ना, वो वाला ग्रुप जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है, हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन वाला ग्रुप, दैट इज नथिंग बट जनरली इनर्ट गैसेज। और इसमें जनरली ये हाईली इन्फ्लेमेबल होने के कारण 3 to 10% भी यूज करें तो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, दैट्स वाई जनरली इनर्ट गैसेज आर जनरली मिक्सड विथ इट टू मेक इट लेस इन्फ्लेमेबल, ठीक है। यूज फॉर जनरली प्री पैक्ड सिरिंजेज एंड कार्डियोपल्मोनरी मशीन। सो कार्डियोपल्मोनरी मशीन और जनरली प्री पैक्ड सिरिंजेज को जनरली अगर हमको स्टरलाइज करना है तो विल यूज दिस। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट जनरली दिस लास्ट लाइन यू हैव टू रिमेंबर फॉर FMG, नीट पीजी में ये ऊपर वाले लाइन्स भी पूछ सकते हैं जनरली, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। आगे देखो वेपराइज्ड H2O2 और प्लाज्मा में हमने बात कर लिया। ग्लूटरल डिहाइड, ग्लूटरल डिहाइड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दिस इज यूज्ड फॉर जनरली ब्रोंकोस्कोप, लैरिंगोस्कोप एंड इंडोस्कोप। सो अर्थ्रोस्कोप हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ देखो हमने जनरली अर्थ्रोस्कोप पढ़ा था, कहाँ पे, ये देखो अर्थ्रोस्कोप एंड यूरेट्रोस्कोप। तो सारे स्कोप को फिर जाके प्लाज्मा स्टरलाइजेशन ही नहीं लगाना है, ठीक है। अर्थ्रोस्कोप्स एंड यूरेट्रोस्कोप्स आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, है ना, एंड दिस ब्रोंकोस्कोप एंड लैरिंगोस्कोप विथ इंडोस्कोप ऑल्सो, ठीक है, इंडोस्कोप, लैरिंगोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप विल बी जनरली स्टरलाइज्ड बाय ग्लूटरल डिहाइड एक्सेप्ट अर्थ्रोस्कोप, वही मैंने बताया था ना, अर्थ्रोस्कोप हम प्लाज्मा स्टरलाइजेशन से करेंगे। सो वो वाला क्वेश्चन बहुत जगह भी पूछा गया क्वेश्चन और एक्सेप्शन में यही रहता है, ठीक है, सो ये याद कर लेना है हमको। अब देखो ग्लूटरल डिहाइड इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ग्लूटरल डिहाइड इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो हमने क्या पढ़ा, ब्रोंकोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, इंडोस्कोप। यहाँ देखो ब्रोंकोस्कोप, इंडोस्कोप यहाँ पे है ना, इसको भी यूज होता है, प्रोक्टोस्कोप भी यहाँ पे यूज होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोमीटर, यहाँ पे थर्मोमीटर दिया है, थर्मोमीटर इज जनरली नॉट स्टरलाइज्ड विथ ग्लूटरल डिहाइड, इट इज जनरली, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इनको जनरली करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फिनॉल और अल्कोहल से काम हो जाएगा इनका जनरली थर्मोमीटर्स का, ठीक है। अभी देखो क्योंकि ये बॉडी में इनर में नहीं जाता है बहुत ज़्यादा, है ना, अगर रेक्टल करे तो थोड़ा सा जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इनर, इट डज नॉट इन्वेड द जनरली टिश्यूज, ठीक है। यहाँ पे देखो
हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट जनरली क्या होता है, 3 टाइप के डिसइंफेक्टेंट हम ऐसे देख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स जनरली प्रेजेंट, लाइक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट एंड लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। जनरली अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर की चीज़ें हैं तो वहाँ पे जनरली क्या होगा, हाई लेवल के डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे हम। सो हाई लेवल के डिसइंफेक्टेंट में जनरली देयर विल बी 2% ग्लूटाल्डिहाइड फॉर 20 मिनट्स फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, the instruments which come in contact with the mucous membrane, ठीक है। if it comes in contact with mucous membrane, then we will use generally 2% glutaraldehyde for 20 minutes, ठीक है। for 20 minutes it will be used, है ना। intermediate level disinfectant generally if we use like phenol and alcohol, phenol and alcohols are nothing but generally intermediate level disinfectant, है ना। and this will be used for very easy substance, easy general instruments like thermometers. लो लेवल की डिसइंफेक्टेंट वी कैन यूज लाइक लाइजॉल्स फॉर फ्लोर एंड फैब्रिक, है ना। लाइसॉल हम घर में भी यूज करते हैं ना जनरली, फ्लोर वगैरह जनरली क्या करने के लिए, साफ करने के लिए वो यूज लाइजॉल्स, ठीक है, लाइजॉल्स। आगे देखो, मोस्ट पोटेंट डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट में सबसे मोस्ट पोटेंट डिसइंफेक्टेंट क्या है, दैट इज नथिंग बट सोडियम हाइपोक्लोराइड, मोस्ट पोटेंट। क्योंकि जनरली इसको हम किस में यूज करते हैं बताओ, अभी ये मत देखो, सिर्फ आप बताओ कि सोडियम हाइपोक्लोराइड हम कहाँ पे यूज करते हैं। इट इज बेस्ट फॉर जनरली ब्लड स्पिल्स, ठीक है। अगर ब्लड स्पिल्स हॉस्पिटल वगैरह में हो गया तो वी यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज 1% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इज यूज फॉर ब्लड स्पिल्स। और डायरेक्ट ऐसे करके क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यू विल सी द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स ऑल्सो, कि वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। आगे देखो, कोल्ड स्टरलाइजेशन इज डन बाय दिस, कोल्ड स्टरलाइजेशन क्या है, कोल्ड स्टरलाइजेशन देखो, एक होता है हॉट स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होगा, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, हॉट रेडिएशन भी बोलते हैं। जैसे यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, ये इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेज कहाँ पे यूज करेंगे हम, ओटी फ्यूमिगेशन में और बायोसेफ्टी कैबिनेट में, ठीक है। ओटी फ्यूमिगेशन एंड बायोसेफ्टी कैबिनेट में। दिस हैज लो पेनिट्रेटिंग, दिस इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज एंड इंफ्रारेड, they are generally low penetrating, they have power, low penetrating power, and they are bactericidal, they are not sporicidal in nature. So these are generally hot radiation. अब बात कोल्ड स्टरलाइजेशन की कर ले। सो कोल्ड स्टरलाइजेशन जनरली क्या होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन आर जनरली कोल्ड रेडिएशन। सो आयोनाइजिंग रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड रेडिएशन बोलते हैं। दैट इज इट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस। अगर यूवी रेज पास होगा तो वहाँ से क्या होगा जनरली, यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेज जो हमने अभी यहाँ पे तुरंत पढ़ा है ना, यूवी रेज एंड इंफ्रारेड, ये सब क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। दे विल जनरेट हीट, बट ये जनरल जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, दिस आयोनाइजिंग रेडिएशंस दे विल नॉट जनरेट हीट, दे विल नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड रेडिएशन। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड दे आर स्पोरिसाइडल आल्सो। जो पिछले वाला था दैट वाज नॉट स्पोरिसाइडल बट दिस इज स्पोरिसाइडल आल्सो। अगर एग्जांपल की बात करें तो एक्स रे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे, दीज आर जनरली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। यूजेज इसकी किस में होंगी जनरली, कैटगट सूचर्स को जनरली स्टरलाइज करने के लिए और ग्राफ्ट्स को जनरली स्टरलाइज करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करेंगे। एंड दिस आयोनाइजिंग रेडिएशंस जनरली दे आर यूज फॉर कैटगट सूचर्स एंड ग्राफ्ट्स, ठीक है। यूवी क्या है, हॉट रेडिएशन में पड़ जाएगा। ये यहाँ पे इंफ्रारेड है, ये भी हॉट रेडिएशन है, स्टीम तो वैसे ही हॉट रेडिएशन हो ही गया, ठीक है। सो कोल्ड स्टरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। एन अडल्ट मेल हुई अ ट्रक ड्राइवर, ये देखो ये पता नहीं है वाई ओनली दिस ट्रक ड्राइवर, और ये आप बहुत ज़्यादा देखोगे जनरली द सेम थिंग विल बी देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है। सो एन एडल्ट मेल हु इज अ ट्रक ड्राइवर हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, what generally they are trying to say कि truck drivers they generally travel for a long time and they will travel like a whole country they will be traveling. So generally an adult male who is a truck driver is having multiple sexual partners presented with painless ulcer on genitalia, पेनलेस अल्सर ऑन जेनिटेलिया। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन टू बी परफॉर्म्ड, अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या परफॉर्म करना होगा। सो जनरली दे आर गिविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड जनरली they are giving the history of truck driver having multiple sexual partners. So there mostly what we have to just get from this is they will not be using the contraceptive devices, है ना, and there will be high chances of STDs, ठीक है, high chances of STDs होंगे। and generally
यहाँ पे हमको क्या जनरली वी हैव टू गेट अ आइडिया ऑफ सिफिलिस। दे आर ट्राइंग टू टेल अबाउट जनरली सिफिलिस, पेनलेस अल्सर ऑन जेनिटेलिया की बात कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट सिफिलिस, और उसके जनरली क्या पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस पूछ रहे हैं। सो लेट अस सी अबाउट सिफिलिस। अगर हम सिफिलिस देख लेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा सिफिलिस अगर हम कर लेंगे तो विल बी गुड टू गो विथ एनी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस सिफिलिस। देखो सिफिलिस, इसकी जनरली कॉज की बात करें तो जर्म विल बी जनरली द ट्रिपेनोमा पैलेडियम। दिस ट्रिपेनोमा पैलेडियम इज नथिंग अ स्पाइरोकीट है ये, ठीक है, स्पाइरोकीट है। अगर प्राइमरी सिफिलिस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी सिफिलिस, इट विल बी लोकलाइज्ड विद द पेनलेस सैंकर, not sanchroid. Again I am telling you, this is not a sanchroid, this is sanker. Sanker and sanchroids are different, ठीक है। So localized with pinless sanker, VDRL positive in 80% केस। मैं टेस्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ अभी। इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस क्या होगा, जनरली डिसेमिनेटेड होगा, मैक्यूलोपैपुलर रैश होगा ऑन पाम्स एंड सोल्स पे भी, ये जनरली मैक्यूलोपैपुलर रैशेज विल बी प्रेजेंट। दिस वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन डर्मेटोलॉजी ऑल्सो, ठीक है, डर्मेटोलॉजी में भी हमने ये किया हुआ है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इन द सेकेंडरी सिफिलिस देयर विल बी कॉन्डाइलोमा लेटा, पेनलेस वाट लाइक लीजन ऑन जेनाइटल्स, ठीक है, पेनलेस होगा, ठीक है, वाट लाइक लीजन ऑन जेनाइटल्स, लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी। वहीं पे जो सैंक्रोइड की बात जब हम करेंगे तो सैंक्रोइड क्या होगा, सैंक्रोइड आपको क्या करेगा, आप क्राई करोगे सैंक्रोइड में, ठीक है, इसलिए ड्यूक्रियाई भी याद रखो, ठीक है, ड्यूक्रियाई द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंक्रोइड, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और ये सैंकर क्या है, पेनफुल नहीं है। एंड जनरली VDRL RPR नॉन स्पेसिफिक होगा यहाँ पे, कन्फर्मेटरी FTA ABS होगा यहाँ पे। टर्शियरी सिफिलिस की अगर बात करते तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गम्माज, दैट इज द क्रोनिक ग्रैन्युलोमाज, एंड ऑर्टाइटिस विल बी ऑल्सो प्रेजेंट। न्यूरोसिफिलिस की अगर बात करें तो जनरल टेबिस डोर्सालिस, जनरल पैरेसिस विल ऑल्सो बी प्रेजेंट, एंड एरिजिल रोबर्टसन प्यूपिल विल ऑल्सो बी सीन इन द टर्शियरी सिफिलिस। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस की बात करें तो जनरली रैगेट्स, ये क्या होता है, जनरली linear scar at angle of mouth, we'll see linear scar at angle of mouth, that is called raggets. If we talk about the nasal discharge that will be present in the congenital syphilis, that is called as snuffles, and there will be Hutchinson teeth, जैसे सैडल नोज होंगे, सैडल डिफॉर्मिटी होगा नोज में, नॉच्ड टीथ होगा, टीथ में नॉचेज प्रेजेंट होंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली हचिनसन टीथ। एंड दिस ऑल इज शिफ्टिंग योर जनरल डायग्नोसिस टुवर्ड्स द कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। इतना याद रखना, ये दो तीन चीजें आप कॉन्जेनाइटल सिफिलिस का जब केस देगा आपको जनरल डर्मेटोलॉजी में, दे कैन गिव दिस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको बताते हैं टेस्ट फॉर सिफिलिस। सो लेट अस डू सम टेस्ट फॉर सिफिलिस। इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दैट आर अवेलेबल फॉर सिफिलिस, देयर विल बी टू टाइप ऑफ टेस्ट, वन वी कैन गो फॉर सेरोलॉजिक टेस्ट एंड अनदर इज डायरेक्ट टेस्टिंग। सो सेरोलॉजिक टेस्ट में जनरली स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट विल बी देयर। स्पेसिफिक टेस्ट में RPRL और VDRL होगा, ठीक है, and specific test, the specific test for generally syphilis will be FTA ABS and TPPA, ठीक है, TPPA। अगर डायरेक्ट टेस्टिंग में हम जाए तो जनरली देयर विल बी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड PCR कैन आल्सो बी डन, polymerase chain reaction can also be done. So these are the different type of test that is available for syphilis. So यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन टू बी परफॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखो ऑप्शन में दूसरा है भी नहीं हमारे पास, इसलिए हमको वही लगाना होगा। ग्राम स्टेन, ये जनरली ग्राम पॉजिटिव जनरली ऑर्गेनिजम्स के लिए किया जाएगा, है ना, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव वालों के लिए। व्हिफ टेस्ट जनरली बैक्टीरियल वाजिनोसिस में हम करेंगे, KOH 10% KOH, है ना। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ये डायरेक्ट हो गया। इसके लिए P24 एंटीजन टेस्टिंग, ये जनरली क्या करता है, HIV वायरस का जो होता है जनरली P24 प्रोटीन होता है उसको डिटेक्ट करता है। सो दिस इज नॉट फॉर जनरली आवर स्पाइरोकिट, और दैट इज नथिंग बट ट्रिपोनेमा पैलिडम व्हिच कॉजेज सिफिलिस। सो कहीं पे कोई मतलब नहीं बनता। इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू टेस्ट फॉर सिफिलिस इन विलेज विथ पुअर रिसोर्स, अब विलेज में जनरली क्या है, कोई रिसोर्स तो है नहीं कि सारी चीज़ें PCR वगैरह हम कर सके। सो जनरली वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर डायरेक्ट टेस्टिंग, दैट इज नथिंग बट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, और उस पर हमको क्या दिखेगा, जनरली डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जनरली रिफ्लेक्टेड लाइट इल्यूमिनेट्स द ऑब्जेक्ट। वहाँ पे माइक्रोस्कोपी से भी कुछ पूछ सकता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में, तो वो यही है कि ये जनरली कौन सा लाइट यूज करेगा। सो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप्स विल जनरली बी यूजिंग reflected light which will illuminate the object, and it is generally used for thin structures like flagella and spirochetes, अभी जो हम spirochetes की बात कर रहे हैं। So you can see it there. Which organism cannot be grown on artificial media, artificial media पे कौन सा जनरली ग्रो नहीं किया जा सकता। So generally अगर हम देखें तो यम लेप्रा, बाकी जितने सब आर्टिफिशियल पे करे जाएंगे, बट फॉर एम लेप्रा, है ना, लेप्रे के लिए जनरली हमको क्या करना होगा, जिसको हम हैंसन्स बैसिलस भी बोलते हैं, एंड दिस नीड्स टू बी इनोकुलेटेड इन द फुट पैड ऑफ माइस। जनरली माइस के फूड
फुट पैड में ही ये जनरली हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सो वो हमारा आर्टिफिशियल मीडिया तो नहीं हुआ। सो यहाँ पे देखो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की अगर हम बात करें, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंसन्स बैसिलस। इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर मीन्स इट रिक्वायर्स अ सेल टू ग्रो, ठीक है। इट कैन नॉट बी ग्रोन ऑन एनी कल्चर मीडियम, ग्रोन ऑन 9 बैंडेड एरामेडिलो। 9 बैंडेड, जिसके शरीर पे 9 बैंड्स होंगे एरामेडिलो के, वो एरामेडिलो, 9 बैंडेड एरामेडिलो और फुट पैड ऑफ माइस इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरली ग्रोथ ऑफ दिस एमएफडी। इट इज ऑब्लिगेट एरोब, ये ऑब्लिगेट एरोब है, एरोबल कर दिया मैंने, ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस मूव विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्लड स्पिलेज। अभी हमने किया था जनरली क्या, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड विल बी यूज्ड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल बी यूज्ड फॉर जनरली सैनिटाइजर्स में जनरली यूज करेंगे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। फिनॉल जनरली हम कहाँ यूज करेंगे, फॉर क्लीनिंग लैब एंड हॉस्पिटल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 विल बी यूज्ड फॉर जनरली बैक्टीरियल स्पोर्स एंड प्रोटोजोअल सिस्ट्स। आगे देखो, ग्रीज डस्टिंग पाउडर एंड पैराफिन आर स्टेरलाइज बाय, ग्रीज डस्टिंग पाउडर एंड पैराफिन, ये सबको जनरली स्टेरलाइज करने। देखो मैं पूरा का पूरा ये स्लाइड पढ़ देता हूँ, आपको सब इजी हो जाएगा यहाँ से। देखो दो हीट होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। जनरली यहाँ पे देखो मॉइस्ट हीट से जनरली वो हमने पहले ही बात कर चुका है। देखो किलिंग इफेक्ट इज ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुरेशन इन द ड्राई हीट। ड्राई हीट में जनरली क्या होगा, द किलिंग इज ड्यू टू द प्रोटीन डीनेचुरेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द मेटाबोलाइट। वहीं पे मैकेनिज्म ऑफ किलिंग इन मॉइस्ट हीट क्या होगा, जनरली इज ड्यू टू प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन, ठीक है, कोआगुलेशन। मेथड्स एंड यूज, देखो फ्लेमिंग किसके लिए करेंगे हम, फॉर लूप वायर एंड सीयरिंग स्पेचुलाज, ठीक है, स्पेचुलाज के लिए फ्लेम पे जनरली उसको हम हीट कर देंगे, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट इंसिनरेशन, है ना, इंसिनरेशन की बात करें तो जनरली बर्निंग, दैट विल बी यूज फॉर कंटामिनेटेड क्लॉथ, पैथोलॉजिकल वेस्ट एंड एनाटॉमिकल रिमेन्स के लिए। जैसे हमने कोई इफ़ वी डिड सम एनाटॉमिकल प्रैक्टिकल और उसमें एनाटॉमिकल रिमेन्स कुछ रहेगा तो उसको जनरली हम इंसिनरेट करेंगे। हॉट एयर ओवन, या फिर फार्मोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में भी जब हम एनिमल वगैरह यूज करते हैं, यहाँ देखो हॉट एयर ओवन, ऑल ग्लास सिरिंजेज एंड ग्लास वेब्स दे शुड बी स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन। लिक्विड पैराफिन मस्ट बी जनरली sterilized with hot air oven. Dusting powder also, swabs, scalpel, forceps, scissors, fat and grease, they all should be generally with स्टरलाइज विथ जनरली हॉट एयर ओवन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हॉट एयर ओवन, क्या है, हॉट एयर ओवन इज नथिंग बट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ये देखो ड्राई हीट, मोस्ट हीट में जनरली दिस डज नॉट कम, सो किल्स बाय प्रोटीन एंड डीजेनेरेशन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये याद रखना है हमको। अब मोस्ट हीट का भी कर ही लेते हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ गया तो हो जाएगा। मेथड्स इसमें क्या क्या है, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लीविंग और ग्लव्स के जनरली हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो मेथड्स एंड यूज, मेथड्स एंड यूज में पास्चराइजेशन के लिए होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जनरली क्या होता है, 121 डिग्री टेम्परेचर पर जनरली 15 मिनट तक अगर हम हीट करें एट 15 साई प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलते हैं जनरली, दिस इज नथिंग बट ऑटोक्लेविंग एंड इट इज यूज फॉर कल्चर मीडिया, एप्रॉन, ड्रेसिंग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लेड्स वगैरह को इससे नहीं करते। कैथेटर और स्प्यूटम जनरली विल बी इन दिस क्राइटेरिया। आगे देखो, so let's move further, है ना। let's see here. Method of choice for sterilization of liquid पैराफिन, लिक्विड पैराफिन के लिए जनरली हमने अभी देखा था, दैट इज नथिंग बट हॉट एयर ओवन और ड्राई हीट स्टरलाइजर भी यूज कर सकते हैं। आगे देखो, हॉट एयर ओवन एफिशिएंसी इज बेस्ट चेक्ड बाय हुच, है ना, बेस्ट चेक्ड बाय हुच बैक्टीरिया, यानी कि कंट्रोल की बात की जा रही है यहाँ पे। देखो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि जो डिफरेंट प्रोसीजर्स है स्टरलाइजेशन के, उसमें कंट्रोल कौन कौन सा यूज होता है। सो फॉर हॉट एयर ओवन वी यूज बैसिलस सबटिलिस, एट्रोफियस और सी टेटानी की भी यूज कर सकते हैं। ऑटोक्लेव में जनरली द कंट्रोल विल बी स्टीयरोथर्मोफिलस, ठीक है। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में द सेम स्टीयरोथर्मोफिलस विल बी यूज। फिल्ट्रेशन में जनरली ब्रीवॉन डी मोनास, डाइम्यूनिटास और सेरेसिया का यूज कर सकते हैं। रेडिएशन में जनरली बी प्यूमिलस, गैस स्टरलाइजेशन में भी गॉल्बी जाई का जनरली हम यूज कर सकते हैं। सो ये सारी जो जितने भी हैं उसको मैंने एक जगह पे कर दिया ताकि आप लोगों को इजी हो यहाँ पे। सो यहाँ पे बैसिलस सबटिलिस विल बी आवर आंसर। प्रायन इज बेस्ट डिस्ट्रॉयड बाय, देखो प्रायन को जनरली क्या करना है, अगर हमको इफ वी हैव टू किल प्रायन, सो जनरली वी हैव टू यूज जनरली ऑटोक्लेविंग कैन बी यूज्ड, एंड ऑटोक्लेविंग एट अ लिटिल बिट हायर टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया गया। जनरली ऑटोक्लेविंग जनरली 121 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, बट यहाँ पे ऑप्शन में ऑटोक्लेविंग एक ही जगह, सो दिस विल बी आवर आंसर। सो ऑटोक्लेव में जनरली देखो क्या होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक 15 साई प्रेशर पे रखना है। द इंस्ट्रूमेंट और मशीन लुक्स लाइक अ प्रेशर कुकर, अगर फोटो को देख के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे और प्रेशर कुकर की तरह कोई मशीन दे, सो दैट इज नथिंग बट ऑटोक्लेवर है वो, ठीक है। टू किल प्रायंस दैट इज
थोड़ा सा हायर टेम्परेचर यहाँ पे यूज होगा फॉर प्रायंस, दैट इज 134 टू 135 डिग्री। और जनरली इसको जो 15 मिनट तक जनरली ऑटोक्लेव हम कर रहे थे, वो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के 1.5 आवर्स तक कर देंगे हम जनरली। यूजेज इसकी क्या क्या है जनरली, ऑटोक्लेव किस किस के लिए यूज किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट, एप्रॉन, सूचर एक्सेप्ट कैटगट सूचर। कैटगट सूचर कहाँ किया था, अभी ऊपर किया था हमने। मीडिया एक्सेप्ट एलजे मीडिया, लॉजस्टीन, जॉनसन मीडिया है ना, लफलर सीरम स्लोप है ना, एज दे आर इन लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। स्प्यूटम के लिए जनरली प्रायर टू डिस्कार्डिंग द जनरली स्प्यूटम इट इज ऑटोक्लेव्ड। कंट्रोल क्या होता है, बी स्टीयरोथर्मोफिलस। ठीक है, चलो मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन टू बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियोफेज। देखो बैक्टीरिया को, इसमें तीन चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, थ्रू फ्री डीएनए। ट्रांसलेशन जनरली आरएनए से प्रोटीन बनना, उसको हम ट्रांसलेशन बोल देंगे। तो यहाँ पे मेनली आपको क्या समझना है, ट्रांसडक्शन क्या है। ट्रांसडक्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हमको क्या करना है, जीन्स को ट्रांसफर करना है, और जिसमें हम यूज करेंगे एक बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। जनरली एग्जांपल प्रोकैरियोट्स में यूज किया जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन में क्या होता है, थ्रू डायरेक्ट सेल कांटेक्ट। द जेनेटिक ट्रांसफर इज डन विया डायरेक्ट सेल कांटेक्ट। एग्जांपल ई कोलाई, बैक्टीरियोइड्स, पोरफायरोमोनास एंड फ्यूजोबैक्टीरियम्स। ये सब जनरली कंजुगेशन से क्या होंगे, जनरली जेनेटिक ट्रांसफर हो गए, एंड ट्रांसफॉर्मेशन विल बी थ्रू फ्री डीआरएनए। ये तीन चीज याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो जाए। अब देखो ये जितने भी, अगर हम बात करें जनरली ऑर्गेनिजम्स की, तो वो कौन से पीएच पे सर्वाइव कर रहा है, अगर उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें, तो जनरली विल हैव दो तीन पीएच होते हैं जनरली। देखो एसिडिक पीएच, दो पीएच होते हैं मेनली, तो एक न्यूट्रल हो जाता है। सो एसिडिक पीएच और अल्कलाइन पीएच, दो पीएच होते हैं हमारे पास। जनरली एसिडिक पीएच पे जो सर्वाइव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडोफाइल्स बोलते हैं। एंड वो जनरली एग्जांपल लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द अल्कलाइन पीएच पे सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया को हम अल्कैली फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अल्कैली फाइल्स मतलब लविंग, और अल्कैली मतलब अल्कैली में जनरली लविंग। सो जनरली विब्रियो कोलेरा इज अल्कलाइन पीएच सर्वाइवर। अगर हम बात करें कैप्नोफिलिक की, सो कैप्नोफिलिक जनरली, कैप्नो हम किसके लिए यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज करते हैं। सो कैप्नोफिलिक दैट रिक्वायर्स द बैक्टीरिया व्हिच रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल आर जनरली कॉल्ड एज के कैप्नोफिलिक। एंड एग्जांपल कंपाइलोबैक्टर हम ले सकते हैं। सो जनरली मीसोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जनरली कितने पे सर्वाइव करेंगे, 25 टू 40 डिग्री। कैसे, देखो मीसोफिलिक अगर टेम्परेचर पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पे अगर हम जनरली बैक्टीरियाज को क्या करें, डिवाइड करें, तो दोज बैक्टीरियाज व्हिच लिव इन टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्रोफाइल्स। एग्जांपल यर्सिनिया और लिस्टेरिया है ना। दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, नॉट फूड पॉइजनिंग, फूड स्पॉइलेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे जनरली क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं मीजोफाइल्स। यानी कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट वी स्टडी आर नथिंग बट generally mesophiles, and they grow at the temperature of 25 to 40 degrees Celsius. If we talk about the bacteria which love high temperature like from 58 degree to 80 degrees Celsius, they will be called as thermophiles. An example Thermus aquaticus. आगे देखो, a bacterium which can sustain 80 degree is called as, देखो 80 डिग्री जो कर रहा है that is nothing but thermophilic. स्पोरुलेशन ऑकर्स इन दिस फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहीं पे मेंशन किया गया, 18, 19 और 17 तीनों में पूछे गए हैं लगातार 3 ईयर तक लगातार। दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। सो लेट्स सी स्पोरुलेशन ऑकर्स इन दिस फेज। सो स्पोरुलेशन कौन से फेज में जनरली बैक्टीरिया का होता है। सो अगर बैक्टीरिया की डिफरेंट फेज की बात करें तो कौन कौन सा फेज आता है, यही 4 फेज है। देखो स्टेशनरी, उसके बाद लैग, लॉग और डिक्लाइन, 4 फेजेज होते हैं। सो स्टेशनरी फेज में क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से समझो। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ इसमें। स्टेशनरी फेज, सो इन द स्टेशनरी फेज, नाम ही क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी में सम आर वायबल, सम आर डेड। द ग्रोथ इज सीज्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। द ग्रोथ सीजेज एयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट। Non-uniform staining, in this phase if you try to stain the bacteria there will be non-uniform staining. Sporulation and exotoxin production will be taking place in this phase only. Antibiotic production will be there and
सीन प्रोडक्शन विल बी सीन इन स्टेशनरी फेज। सब क्वेश्चन है, सब के सब जितने मैंने 3-4 पॉइंट यहाँ पे आपको बताए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ लैग फेज की, तो लैग में क्या होगा, देयर विल बी नो इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, देयर विल बी नो इंक्रीज इन नंबर, देयर विल बी सेल एडेप्टेशन, है ना, इंक्रीज इन साइज होगा, नॉट इन नंबर। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा आपके पास कि इंक्रीज इन नंबर है या इंक्रीज इन साइज है लैग फेज में। सो लैग फेज में इंक्रीज इन साइज होगा, enzyme and metabolites also will increase, maximum size is seen at the end of, क्योंकि इसी में तो साइज इंक्रीज शुरू होना होता है, तो इसके लास्ट तक जाके क्या होगा, साइज होगा वो मैक्सिमम अटेन कर चुका होगा। अगर नेक्स्ट हम देखें लॉग फेज में क्या होगा, लॉग फेज में देयर विल बी सेल डिवीजन, स्मॉलर इन साइज, मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी विल बी सीन एंड मोर ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड वंस इन द एम्स आल्सो कि जनरली कौन से फेज में द बैक्टीरियाज आर मोर ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स, दैट इज नथिंग बट लॉग फेज। आगे देखो एक होता है लास्ट वाला, दैट इज डिक्लाइन फेज, जिसको हम क्या ही बोल सकते हैं, डेड फेज भी बोल सकते हैं। हेयर द सेल डेथ और इन्वोल्यूशन विल ऑकर, सो दिस इज नथिंग बट जनरली द डिक्लाइन फेज। अगर इसकी ग्राफ हम देखें तो रफली ऐसा ग्राफ आता है, ये लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन, ठीक है। दिस इज लैग फेज, ये लॉग फेज। लॉग फेज में हमने पढ़ा है ना जनरली, लॉग फेज में यहाँ पे देखो, लॉग फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, स्मॉलर इन साइज होगा, मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा एंड मोर ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स होगा। सो दैट इज लॉग फेज। ये स्टेशनरी प्लेट्यू आएगा, दैट इज स्टेशनरी, और उसके बाद डिक्लाइन फेज आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे जनरली आपको, ये जनरली ये फेज वाला जो है ये ग्राफ देके आपको क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टेन्ड बाय, अभी देखो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स यानी कि मल्टी कलर, मेटाक्रोमेटिक मल्टी कलर ग्रैन्यूल्स। अब जनरली अगर हम वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करें, सो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के लिए जनरली कौन कौन से यूज करते हैं हम, एट द रेट प्लान करके याद रखो, दैट इज पॉन्डर्स स्टेन, लॉफलर मिथाइलिन ब्लू इज द बेस्ट स्टेन फॉर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, एल्बर्ट स्टेन एंड निसर स्टेन, निसर स्टेन। आगे देखो दिस एल्बर्ट स्टेन, सो हमको पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा, एल्बर्ट स्टेन आंसर होगा। एल्बर्ट स्टेन क्या है, एक डिफरेंशियल स्टेन है एंड इट इज यूज फॉर कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, या फिर जनरली जब हम क्या बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट these metachromatic granules, so that is nothing but Corynebacterium diphtheria. It is used for वॉल्यूटिन बेब्स अर्न्स्ट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अल्बर्ट स्टेन बाइपोलर एंड मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स के लिए यूज की जाती हैं। अल्बर्ट सॉल्यूशन 1 में क्या होता है, मेलासाइट ग्रीन होता है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए, एंड टोलिडिन ब्लू में क्या होता है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो मेटाक्रोमेटिक 2 कलर्स देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो अल्बर्ट सॉल्यूशन 2, अल्बर्ट सॉल्यूशन 2 में क्या होता है, आयोडीन होता है, जो जनरली क्या करता है, एक्चुअल कलर जिसका ब्लू होता है, ऑन सैंपल इट विल टर्न टू पर्पल एंड गैलेशियल एसिटिक एसिड विल आल्सो बी प्रेजेंट इन द एल्बर्ट 2। सो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एल्बर्ट सॉल्यूशन 1 है या 2 है, वो क्वेश्चन पूछा, उतना डीप में यहाँ पे तो नहीं पूछेंगे, दूसरे जगह पे पूछेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। अभी देखो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट के लिए जनरली सबसे क्या होता है, अगर फॉल्स निगेटिव केसेस की बात करें ट्यूबरकुलिन टेस्ट में, तो दैट इज नथिंग बट कॉमन इन इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल, इम्यूनोसप्रेस्ड पीपल में, है ना। अब ये फॉल्स पॉजिटिव विथ बीसीजी वैक्सीनेशन, जो बीसीजी वैक्सीनेशन लगवाए हैं उनके में जनरली कैसा दिखाएगा, फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा। फॉल्स निगेटिव किसमें, इम्यूनोसप्रेस्ड में। कांट डिफरेंशिएट बिटवीन लेटेंट एंड एक्टिव टीबी, यस दिस इज द most important drawback of tuberculin test. It will not differentiate between the latent and active TB. It does not differentiate between primary TB and generally miliary TB, है ना, ये भी है, बट दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कांट स्क्रीन द लेटेंट टीबी, नहीं देखो इट कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ लेटेंट टीबी, ठीक है। सो ये हमको समझना है। लाइसोजेनिक कन्वर्सन, ठीक है, लाइसोजेनिक देखो फेजेज ऑफ बैक्टीरियल साइकिल, अगर हम देखो बैक्टीरियल साइकिल नहीं, बैक्टीरियोफेज की साइकिल, बैक्टीरियोफेज इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ वायरस। सो बैक्टीरियोफेज की साइकिल की बात करें तो जनरली वहाँ पे 2 फेजेज होंगे, लाइटिक फेज और लाइसोजेनिक फेज। जनरली वायरल में उसमें हम फेजेज में पढ़ते हैं कि जनरली देयर विल बी लाइटिक एंड लाइसोजेनिक फेज। लाइटिक फेज में क्या होगा, लाइसिस ऑफ इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, है ना, ये हम जनरली बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं। ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, जब बैक्टीरिया पे अटैक करेगा एक बैक्टीरियोफेज, तो लाइटिक फेज में क्या होगा, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया की लाइसिस होगी एंड ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल विल टेक प्लेस। लाइसोजेनिक फेज में क्या होगा, बैक्टीरियोफेज डीएनए कंबाइन विद डोनर डीएनए एंड वर्टिकल ट्रांसफर टू डॉटर सेल्स विल ऑकर एंड ऑफस्प्रिंग्स हैव न्यू प्रॉपर्टीज। कौन से में न्यू प्रॉपर्टीज आता है जनरली, लाइसोजेनिक फेज में, ठीक है, लाइसोजेनिक फेज में आता है, ठीक है। So in the lysogenic phase, so lysogenic conversion integration of phage nucleic acid to host bacteria जीनोम, ठीक है, और उसमें न्यू प्रॉपर्टीज आएंगे। अब ये ट्रांसडक्शन वगैरह की जो मैंने बात की थी, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ट्रांसडक्शन जो होगा वो 2 टाइप के
ट्रांसडक्शन देखे जाएंगे। ट्रांसडक्शन में एक जनरलाइज ट्रांसडक्शन और एक स्पेशलाइज्ड। ये जनरलाइज ट्रांसडक्शन जो होगा दैट विल फॉलो लाइटिक साइकिल। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। दैट्स वाई दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रांसडक्शन में जनरली क्या होगा, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन फॉलोज लाइटिक साइकिल, वेयर द स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन विल फॉलो लाइसोजेनिक साइकिल। यही एक क्वेश्चन है, यही पूछ देता है डायरेक्टली। सो अगर हम ट्रांसडक्शन में देखें जनरलाइज्ड में, द बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट्स डीएनए इनटू डोनर बैक्टीरिया, पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। द बैक्टीरियोफेज विल इंजेक्ट डीएनए इनटू डोनर बैक्टीरिया, द न्यू बैक्टीरियोफेजेज विल बी फॉर्म्ड, है ना। मिस पैकेजिंग इज सीन जनरली अगर वहाँ पे डोनर के आरएनए डोनर के डीएनए अगर आ गए तो। न्यू बैक्टीरियोफेज गिव डोनर डीएनए टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया, दैट इज रिलीज बाय जनरली लाइसिस से होता है ना, इसलिए दिस फॉलो जनरली लाइटिक साइकिल। अगर स्पेशलाइज्ड हम ट्रांसडक्शन की बात करें तो देयर विल बी बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट डीएनए टू डोनर बैक्टीरिया, उसके बाद वायरल डीएनए और डोनर डीएनए फ्यूजन होगा प्रोफेज में, है ना। एंड जनरली देयर विल बी सेपरेशन ऑफ डीएनए, दैट इज इंडक्शन बाय यूवी लाइट और एनमस्टार्ड हम कर सकते हैं ना। बट सेम डोनर डीएनए अगर लेफ्ट हो गया, सम डोनर डीएनए अगर लेफ्ट हो गया, दैट विल बी लीडिंग टू न्यू बैक्टीरियोफेज विथ डोनर प्लस सेल्फ डीएनए फॉर्म्ड। न्यू बैक्टीरियोफेज गिव डोनर डीएनए टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। सो दिस इज जनरली द स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन टेकिंग प्लेस इन लाइसोजेनिक साइकिल। ये भी हमको याद करना है। अभी देखो येलो बैग इज डिस्ट्रॉयड बाय, देखो अब ये वेस्ट मैनेजमेंट से, दिस क्वेश्चन अगेन विल बी रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन योर पीएसएम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट होगा। सो लेट्स सी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। देखो बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज की अगर हम बात करें, सो जनरली विल हैव, कलर से अगर हम देखें तो येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग और व्हाइट बैग होगा हमारे पास। अभी वेस्ट टाइप क्या है, वो येलो बैग में हम कौन सा वेस्ट टाइप रखेंगे, जनरली इन्फेक्शियस वेस्ट टाइप में और मे नॉट बी प्री ट्रीटेड। इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं और नहीं भी प्री ट्रीट करके भी हम ऐसे भी जनरली क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं येलो बैग में। इन द येलो बैग व्हाट ऑल विल बी देयर, यहाँ पे देखो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट विल बी केप्ट इन द येलो बैग, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सोइल्ड वेस्ट, जिसमें अगर if it has come in contact with generally soils, it will be kept in the yellow bag. Expired or discarded medicines can be kept in the yellow bag. Microbiological or lab waste can be kept in the yellow bag, है ना. Chemical liquid waste can also be kept in the generally येलो बैग. मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या होगा, येलो बैग में जितने भी चीज़ें हैं उनको हम डिस्पोजल किससे करेंगे, इंसिनरेशन बाय बर्निंग. रेड बैग में जनरली हम क्या रखेंगे, कॉन्टामिनेटेड वेस्ट. ट्यूबिंग, बोतल, आईवी ट्यूब एंड सेट्स, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंजेज विदाउट नीडल्स, विदाउट नीडल्स एंड ग्लव्स कैन बी केप्ट इन द रेड बैग. ये इन्फेक्शियस होता है जनरली, इन्फेक्शियस वेस्ट टाइप, दीज आर इन्फेक्शियस वेस्ट टाइप. अगेन रबर, प्लास्टिक ट्यूब, वही जो सारी चीज़ें मैंने बोला, और विदाउट प्री ट्रीटमेंट भी हम इसमें रेड बैग में रख सकते हैं. एंड जनरली क्या होगा, इट विल बी डिस्पोज्ड बाय रिसाइकलिंग और रीयूज. ब्लू बैग की अगर हम बात करें तो इट विल जनरली हैव ग्लास एंड मेटालिक इम्प्लांट्स. Again there will be no pre-treatment done for the substances that are kept in the blue bag, and recycling और reuse से इसको हम क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे. white bag में जनरली क्या होगा, sharp instruments including metals will also be generally kept in the white bags. no pre-treatment is required and recycling और reuse after shredding. ठीक है, shredding का एक पॉइंट याद रखो, shredding. yellow bag is destroyed by, so yellow bag is destroyed by, देखो yellow bag is destroyed by incineration. इंसिनरेशन इज डन फॉर जनरली येलो बैग. येलो बैग में क्या रखते थे हम, ह्यूमन बॉडी पार्ट या फिर जनरली एनाटॉमिकल लैब में जो हम कोई जनरली जैसे फार्मा के लैब्स वगैरह में जब हम जनरली वी डू लाइक माउस एंड रैबिट की जब हम डाइसेक्शन वगैरह करते हैं तो उसको भी जनरली रखते हैं. सो दैट इज नथिंग बट एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट और ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट. सो जनरली इंसिनरेशन इज डन फॉर येलो बैग एंड इन येलो बैग वी कीप ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. ठीक है, आगे देखो ग्राम स्टेन इज अ, ग्राम स्टेन क्या है, देखो ग्राम स्टेन क्या है, इट इज अ डिफरेंशियल स्टेन. ग्राम स्टेन इज अ डिफरेंशियल, क्योंकि वो आपको डिफरेंशिएट करके बताएगा whether दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव और whether दिस इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, तो उस हिसाब से तो ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ब्लू या फिर पर्पल कलर देगा, और ग्राम नेगेटिव में पिंक या फिर रेड कलर आएगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडियम इज मेड बाय एडिंग अगर, अगर ऐड करके हम कौन सा मीडियम बनाएंगे, सो दैट इज नथिंग बट सॉलिड मीडियम. ठीक है, अगर किस चीज से बनाया जाता है, इफ यू नो जस्ट होल्ड ऑन हियर. एंड अगर इज मेड फ्रॉम एक सीवीड है जिसका नाम आपको बताना है. सो इफ यू टेल मी दैट, जस्ट होल्ड ऑन एंड इफ यू नो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट. ठीक है, अगर इज एडेड टू ब्रॉथ मीडियम, अगर को ब्रॉथ मीडियम में हम जनरली किस लिए डालते हैं, टू मेक द मीडियम सॉलिड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज आइसोलेटेड विद सेट्रीमीड अगर, सेट्रीमीड अगर में हम जनरली सूडोमोनास एरिजिनोसा का जनरली करते हैं. थियर मार्टिन अगर इज मीडियम फॉर, थियर मार्टिन अगर दैट इज अ सेलेक्टिव मीडियम. ठीक है, सेलेक्टिव मीडियम है जनरली यूज फॉर निसेरिया मेनिंजाइटिस.
Which of the following is best for diagnosis of genital TB? ओके, सो जेनाइटल टीबी के लिए हम एलजे मीडियम यूज करते हैं। जेनाइटल टीबी के लिए हम एलजे मीडियम यूज करते हैं। इन रोबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, रोबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया, मीट कलर विल चेंज टू, जनरली देखो इसमें जनरली क्या होगा आपको बताता हूँ मैं। देखो इन रोबर्टसन कुक मीडिया, ठीक है, रोबर्टसन कुक मीडिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लूइड मीडियम फॉर एनएरोब्स, याद रखना एनएरोब्स के लिए रोबर्टसन कुक मीडिया यूज करेंगे हम, कुक्ड मीट मीडिया, ठीक है। एंड जनरली हियर द पिंक कलर शोज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस एंड ब्लैक कलर शोज क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, उसमें डिफरेंस करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो जनरली मीट कलर विल चेंज टू पिंक, ठीक है, पिंक यानी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के लिए, ठीक है। ओके, टेल मी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस causes what? Does it causes gangrene? If yes, then what type of gangrene? Please tell me. मैकोंकी अगर मीडियम की अगर हम बात करें, मैकोंकी अगर मीडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो मैकोंकी अगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो हमने ऊपर ही सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वही किया था हमने, डिफरेंशियल मीडिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर मीडिया, इंडिकेटर मीडिया के सारे एग्जाम्पल है एक्सेप्ट, है ना। सो जनरली देखो ब्लड अगर इंडिकेटर मीडिया है ना, जनरली मैकोंकी भी है, ईओसिन मेथाइलिन ब्लू भी है। स्टुअर्ट मीडिया ये क्या है? स्टुअर्ट मीडिया इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर गोनोकोकाइन एंटेरिक बैसिलाई, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए जनरली ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंशियल मीडिया, जनरली डिफरेंशियल मीडिया में क्या होगा? ब्लड अगर, ईओसिन मेथाइलिन ब्लू, मैकोंकी अगर और मैनिटॉल साल्ट अगर। ओके, टेल मी व्हाट इज मैनिटॉल यूज्ड फॉर? मैनिटॉल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन व्हिच केस एंड वेयर इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? मैनिटॉल, I hope you have wrote down the answer. Okay, I'll tell you. Mannitol generally cerebral edema में हम यूज करते हैं, और अगर वहाँ पे हेमरेज प्रेजेंट है तो देन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। चलो, स्टेन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ AFB स्पीयर, ऐसे AFB एसिड फास्ट बैसिलस के स्मीयर में जनरली स्टेन कौन सा यूज होता है? सो दैट इज नथिंग बट ZN स्टेन, दैट इज जील नीलसन स्टेन। विल फेलिक्स रिएक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन? यस, इफ यू रीड दैट, क्या बोलते हैं यार उसको, बड़े लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट एड। हाँ, USMLE के लिए जो फर्स्ट एड पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे एक नीचे में विल फेलिक्स रिएक्शन करके एक दिया ही हुआ है। इन माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन इटसेल्फ दे विल बी गिविंग ऑफ विल फेलिक्स रिएक्शन, पेज नंबर आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट वहीं पे है वो, नीचे में, नीचे वाले साइड पे आपको मिलेगा जनरली विल फेलिक्स रिएक्शन। ये जनरली क्या है? इट इज ए ट्यूब एग्लूटिनेशन। ये क्या है? ट्यूब एग्लूटिनेशन। देखो स्लाइड एग्लूटिनेशन में क्या आता है? स्लाइड एग्लूटिनेशन में जनरली VDRL जो सिफिलिस के लिए हम करते हैं वो आ जाता है। सीरोटाइपिंग ऑफ सैल्मोनेला के लिए भी स्लाइड एग्लूटिनेशन मेथड का यूज किया जा सकता है। ट्यूब एग्लूटिनेशन मेथड जनरली अका स्टैंडर्ड, ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन क्या है? ट्यूब एग्लूटिनेशन। इट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, ब्रूसेलोसिस एंड टाइफस फीवर। एग्जाम्पल विल बी वाइडल टेस्ट। टाइफाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं शुरू में? जनरली वाइडल टेस्ट विल बी परफॉर्मिंग विल फेलिक्स एंड कान टेस्ट। सो विल फेलिक्स इज ऑल्सो अ ट्यूब एग्लूटिनेशन, ठीक है। पैसिव एग्लूटिनेशन की बात करें तो फॉर रूमेटॉइड फैक्टर, ANA4 SLE है ना, एंटीबॉडी, और AB एंटीबॉडी टू ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस एंड ट्राइकिनेला स्पाइरलिस आल्सो इज इन द पैसिव एग्लूटिनेशन। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप में जो हम यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्ट एग्लूटिनेशन मेथड एंड सीरोटाइपिंग एंड सीरो ग्रुपिंग ऑफ विब्रियो कोलेरा एंड साल्मोनेला स्पीसीज। Which of the following is an example of precipitation reaction? Precipitation reaction के एग्जाम्पल कौन से हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, कूम्स टेस्ट, काउंटर करंट इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस, विल फेलिक्स टेस्ट एंड वाइडल टेस्ट। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये जो है जनरली अभी जो हमने विल फेलिक्स टेस्ट पढ़ा दैट इज अ एग्लूटिनेशन, बट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो दैट विल बी काउंटर करंट इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें देखो प्रेसिपिटेशन टेस्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। जनरली अगर हम रिंग टेस्ट की बात करें तो जनरली एस्कॉली प्रेसिपिटिन टेस्ट दैट इज डन इन द केस ऑफ बैसिलस एंथ्रासिस, दैट इज एंथ्राक्स के केस में दैट इज अ प्रेसिपिटेशन टेस्ट, और वो जनरली रिंग टेस्ट होगा, रिंग टेस्ट। एंड ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई बाय लैंसफील्ड टेक्निक, इट अगेन कम्स अंडर रिंग टेस्ट। स्लाइड टेस्ट की बात करें तो VDRL टेस्ट फॉर सिफिलिस जो हम करते हैं दैट कम्स अंडर प्रेसिपिटेशन टेस्ट विद स्लाइड टेस्ट। ट्यूब टेस्ट की बात अगर हम करें जनरली तो दैट विल बी कान टेस्ट फॉर सिफिलिस। इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट की बात करें तो एलेक टेस्ट फॉर टॉक्सिजेनिसिटी ऑफ जनरल डिप्थेरिया बेसिलाई, और इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन फॉर काउंटर करंट इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो हमको पता चला ये काउंटर करंट इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे देखो, इन प्रोकैरियोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड म्यूरामिक एसिड। सो दिस न्यूक्लियोलस है ना, ER, गोल्गी बॉडीज, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड जनरली
थिंग्स है। ये तो हम बेसिक हम जो बायोलॉजी पढ़ा था क्लास 11-12 में उसकी बायोलॉजी से भी हम कर देंगे कि जनरली प्रोकैरियोट्स में म्यूरामिक एसिड होता है, जनरली अ कंपोनेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल इन सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियाज में। ठीक है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो जनरली क्या होते हैं, जनरली प्रोकैरियोट्स में जनरली फाउंड नहीं होते, दे विल बी फाउंड इन द यूकैरियोट्स। आगे देखो, एक या दो क्वेश्चन रह गए, चलो। लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, देखो लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन किसके लिए किया जाता है, फॉर बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया बेस्ड ऑन पॉलीसेकेराइड्स इन देयर सेल वॉल। सो जनरली पॉलीसेकेराइड्स में जनरली क्या होगा, लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन पॉलीसेकेराइड्स पे बेस्ड है, और उसमें क्या होगा, एक सी सब्सटेंस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सी सब्सटेंस इज नथिंग बट जनरली पॉलीसेकेराइड बोला ना, सो पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर, सो जनरली दैट इज कार्बोहाइड्रेट, सी सब्सटेंस विच इज एंटीजेनिक। अगर जनरली हम बात करें बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया की, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, सी सब्सटेंस से आती है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन इन अ 2 month ओल्ड चाइल्ड। सारी यूज की जाएंगी एक्सेप्ट बताया। सो देखो HIV के लिए हम कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, लेट्स डू एवरीथिंग अबाउट HIV हेयर, ये मेडिसिन का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। सो लेट अस सी, स्क्रीनिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सेरम एलाइजा यूज करते हैं। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे, दैट इज एलाइजा। कॉन्फर्मेटरी टेस्ट हम किससे करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, अब ये बता दो मुझे, जनरली वेस्टर्न ब्लॉट हम इसके लिए करते हैं, तो बाकी जो दो और ब्लॉट है वो किसके लिए करते हैं, जस्ट pause down the video and tell me. Investigation of choice for HIV is nothing but PCR RNA. Investigation of choice for window period is nothing but PCR DNA. Efficiency of antiviral viral culture करके ही हम जनरली पता लगा सकते हैं। दिस इज फॉर HIV एलाइजा। HIV एलाइजा हम जनरली किस में नहीं करते हैं, जनरली ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द HIV इन्फेक्शन इन 2 month ओल्ड चाइल्ड एक्सेप्ट क्या है, HIV एलाइजा। पॉल बनेल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, पॉल बनेल, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हर एक जनरली क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। I cannot tell you that it is a most repeated, but generally you will find this question in almost all the type of question banks, that is Paul Bunnell test. Paul Bunnell test generally it is done for infectious mononucleosis. किसके लिए, infectious mononucleosis। देखो infectious mononucleosis is caused generally by Epstein-Barr virus, the organism responsible for इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज नथिंग बट एप्स्टीन बार वायरस, जिसको हम ग्लैंड्यूलर फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्यूलर फीवर। क्लिनिकल फीचर अगर हम देखें तो फीवर, लिम्फेडिनोपैथी, सोर थ्रोट, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट इन द ब्लड, एबनॉर्मल लिम्फोसाइट इन द ब्लड विल बी सीन। डायग्नोसिस की बात करें तो मोनोस्पोट टेस्ट से, स्किन रैश विथ एंटीबायोटिक लाइक एम्पिसिलिन से हो जाएगा, इसमें स्किन रैशेज हो जाएंगे। एंड EBV इज ऑल्सो ऑन्कोजेनिक इन नेचर एज इट कॉजेज बी सेल क्लोनल एक्टिवेशन। इतनी चीज़ें हमको जनरली इसमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में जनरली हमको याद रखना। सो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज जनरल माइक्रोबायोलॉजी। और इसके बाद बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है बैक्टीरियोलॉजी, जहाँ से सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, द मोस्ट फेवरेट फॉर योर एग्जामिनर्स। और ये बैक्टीरियोलॉजी जब हम करेंगे तो इसमें फार्माकोलॉजी का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा। सो इफ़ यू रीड अ लिटिल बिट फार्माकोलॉजी बिफोर डूइंग द बैक्टीरियोलॉजी देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए भी, है ना। देन विल डू एवरीथिंग इन अ वेरी क्रिस्प मैनर, और दोनों चीज़ हो जाएगा पूरा का पूरा मेडिसिन। क्योंकि अगर हम जनरली माइक्रोबायोलॉजी और जनरली क्या कर देते हैं, फार्मा अगर इंटीग्रेट कर देंगे वहाँ पे, तो दैट विल बी डन फॉर पैथोलॉजी एंड मेडिसिन बोथ। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ बैक्टीरियोलॉजी, है ना। और बैक्टीरियोलॉजी वहाँ पे हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बट विल डू इट इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर। ओके, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो।